Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start a 34th lecture in basic medical billing course. So today we are going to discuss all about the differences and similarities between medical billing system in USA and Canada. So we will see like what kind of a differences and similarities do they have in their healthcare systems. So without wasting time, let's start the lecture. Okay, so you guys can see that medical billing processes in the USA and Canada have similarities but also notable differences as well due to variations in healthcare systems, regulations, and reimbursements models. Means there would be different kind of models of reimbursements, getting different kind of payments, and there are different kind of rules and regulations and ICDs and coding systems as well. So we are just going to discuss all the stuff in this lecture. So let's see what kind of a differences and similarities do they have. Next we see, so first of all, we are just going to start with the differences, like what kind of a differences do these two systems have. Okay, so you guys can see that the first one is healthcare system. So देखते हैं कि healthcare system के अंदर कौन कौन से differences इनके होते हैं, ठीक है. So first of all हम दोनों को ही compare करेंगे, USA and Canada as well. So पहले हम USA को देखते हैं कि हाँ भी USA के अंदर किस तरीके का सिस्टम है. We have already discussed in previous lectures. Means हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो 33 lectures हो चुके हैं उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा ही medical billing को मीन्स स्टडी किया है, वो USA based ही स्टडी किया है, ठीक है. Because most of the companies working in Pakistan and other areas are for USA based. So हमने USA based ही companies को focus किया हुआ था. उसकी ही सारी डिटेल्स हमने ली हैं, डिटेल उसका कोडिंग सिस्टम, उसके डेमोज, उसके चार्जेस, उसकी सारी मींस ईच एंड एवरीथिंग प्रोज एंड कॉन्स हमने सारे यूएसए बेस्ड ही कंपनीज देखे हैं. बट हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कैनेडियन बेस्ड हैं, मींस वो कनाडा के लिए भी काम कर रही हैं, ठीक है. तो उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से, यूएसए से. सो इस वजह से देयर वाज अ नीड टू डिस्कस ऑल द स्टफ रिलेटेड टू differences and similarities between these two countries. So I just thought we have to make a lecture on this one. So here is a lecture. So let's start it. Okay, so first of all, we are just going to discuss the USA one. The USA has multi-payer healthcare system with a blend of private insurance, employer-based or individual plans, government programs, Medicare, Medicaid, and uninsured populations. मीन्स यूएसए के अंदर बहुत सारी इंश्योरेंसेज हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट की भी इंश्योरेंसेज आ जाती हैं और उसके अंदर प्राइवेट भी इंश्योरेंसेज आ जाती हैं. मीन्स इट्स अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपेयर्स, ठीक है. इसके अंदर बहुत सारी इंश्योरेंस आ जाती हैं, लाइक मेडिकेयर, मेडिकेड आ गई, फेडरल गवर्नमेंट फेडरल की तरफ से आ जाती हैं. उसके अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस आ जाती हैं जो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को वहाँ पर मीन्स वो ले लेते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं. ओके, so this result in a more complex billing landscape due to varying payer requirements and coverages. So इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मीन्स वेरिएशंस आ जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं. गवर्नमेंट की जो होती हैं इंश्योरेंसेस, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है. उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू अडॉप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. They are also following the rules and regulations. They are going to adhere to the rules and guidelines and policies from the government one, you can say that, ठीक है. मीन्स वो गवर्नमेंट की ही रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनकी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहे होते हैं. बट दे हैव डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देयर ओन कंपनीज एज वेल, ठीक है. उनके रिम्बर्समेंट जो सीन होता है, या उनका जो पेमेंट्स का सीन होता है, या किसी भी क्लेम को डील करने का सीन होता है, दे आर क्वाइट डिफरेंट एंड वेरिइंग. सो देयरफॉर कि यहाँ भी यूएसए के अंदर बहुत सारी इंश्योरेंसेज हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मीन्स इसका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो हो जाता है. So next we see what is happening in Canada. Okay, Canada operates under a publicly funded healthcare system. मीन्स उसका जो publicly funded healthcare system है कनाडा उसके तौर पर काम करता है, उसके मीन्स अंडर काम करता है. Where the government provides coverage for medically necessary services. वहाँ पर मीन्स ये है कि गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल जो जितनी भी मेडिकल नेसेसिटीज़ होती हैं वो उनको फुलफिल करती है, ठीक है. जिस चीज़ को मेडिकल की एक्वेंटेंस या यू कैन से दैट मेडिकली सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं जिस भी पेशेंट को, जिस भी सिटीजन को. So they are just going to provide those kind of services to those patients.
Okay, each province manages its own healthcare plan, leading to variations in coverage and billing practices across regions. अच्छा, वहाँ पर अब उसकी जितनी भी मीन्स ये है कि प्रोविंसेस हैं, ठीक है, यूएसए के अंदर स्टेट्स होती हैं, तो उसके अंदर हर स्टेट का मीन्स ये है कि मोस्ट वहाँ पर गवर्नमेंट के तो मोस्टली मीन्स सेम ही प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। बट कनाडा के अंदर जितने भी अब प्रोविंसेस हैं, दे आर जस्ट हैविंग देयर ओन सिस्टम, मीन्स उनका हर स्टेट का अपना एक अलग से सिस्टम है। सो उस सिस्टम के अंदर जिस तरीके के भी मीन्स ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वहाँ के सिटीजन्स को, वहाँ के पेशेंट्स को वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यू कैन जस्ट गेट एन एग्जांपल ऑफ मेडिकेड। ठीक है, मेडिकेड जो यूएसए के अंदर ऑपरेट करती है, वो भी इसी तरीके से ही होती है कि उसकी स्टेट टू स्टेट वाइज उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी जो कवरेजेस हैं इंश्योरेंस की, वो वेरी कर रही होती हैं। सो सेम गोज विद कनाडा। ठीक है, कनाडा के अंदर भी जितने भी प्रोविंसेस हैं इनके, ठीक है, ये उनके डिपेंड करता है कि हाँ भी वो कौन सी कवरेजेस प्रोवाइड करते हैं। एक सपोज हो सकता है कि हाँ भी एक प्रोसीजर एक स्टेट के अंदर हो सकता है, दूसरी स्टेट के अंदर वो जो प्रोसीजर था वो कवर नहीं किया जाता इंश्योरेंस का। सो देर आर डिफरेंसेस बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, सो उसके लिहाज से ये यहाँ पे सेग्रीगेशन की गई है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ भी ये तो था हेल्थ केयर सिस्टम, मीन्स हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब यूएसए के अंदर मल्टी पेयर हैं, ठीक है, वहाँ पर इंडिविजुअल की भी मीन्स ये है कि इंश्योरेंसेस ले सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनी से भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट की तो ऑलरेडी उनको मिल जाती हैं। ठीक है, बट यह है कि उनके फुलफिलिंग क्राइटेरियाज होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द कवरेजेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दैट हाउ द यूएस सिटीजन आर गोइंग टू गेट दीज काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस इन आवर प्रीवियस लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 33। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ जी क्या चीज़ है हमारे पास। Okay, next is coding system. Yes, coding system is quite important in medical billing. So let's see what is the differences, what kind of a differences they do have in coding system. So first of all USA को देखते हैं। As we know that USA is going to use CPT, means current procedural terminology. ठीक है, codes for procedures and ICDs, international classification of diseases, codes for diagnosis। ठीक है, वो मीन्स ये है कि कोई भी प्रोसीजर जब यूज़ किया जाता है तो उसके लिए वो CPT कोड्स यूज़ करते हैं, और जब भी कोई डिजीज़ होती है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए या उसको कोडिंग के लिए आईसीडी 10 या अब नाउ 11 यूज़ किया जाता है डाटा। ठीक है, सो अब देखते हैं कि कनाडा के अंदर क्या सिनेरियो है, उसके अंदर मीन्स क्या चीज़ आ जाती है। प्राइमरली यूजेस आईसीडी 10 कैनेडियन मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर सी आ जाता है, कैनेडियन मॉडिफिकेशन कोड्स फॉर डायग्नोसिस, मीन्स वो अब आईसीडी यूज़ करते हैं 10 CA, कैनेडियन मॉडिफिकेशन कोड्स फॉर डायग्नोसिस, एंड CCI, कैनेडियन क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन कोड्स फॉर प्रोसीजर्स। अब वहाँ पर यूएसए के अंदर CPT यूज़ हो रहा होता है, बट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूएसए कनाडा इज गोइंग टू यूज़ CCI, कैनेडियन क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस कोड्स फॉर प्रोसीजर्स। मीन्स जो भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं वो इनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो ये CCI के अकॉर्डिंग वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो कोडिंग्स करते हैं। ठीक है, अपने प्रोसीजर्स जो भी यूज़ करते हैं वो इनको इनके तहत कोड किया जाता है। ठीक है, अब यूएसए के अंदर आईसीडी और सीपीटी यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर भी आईसीडी है डिजीज़ के लिए, ठीक है, उनकी जो कोडिंग की जाती है वो डिजीज़ की वो आईसीडी के अंदर ही की जाती है। बट डिफरेंशियली यहाँ पर ये है कि हाँ भी यहाँ पर ये जो प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं वो CCI के अंडर यूज़ करते हैं, बट वहाँ पर यूएसए के अंदर CPT कोड्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज reimbursement मॉडल्स। अब reimbursement के मॉडल्स क्या होते हैं, मीन्स हाउ दे आर जस्ट गोइंग टू reimburse द पेमेंट्स टू द प्रोवाइडर्स। ठीक है, सो लेट्स सी, वी ऑल नो दैट यूएसए के अंदर मीन्स ये है कि बिल्कुल ओपन सिस्टम होता है वहाँ पर, मीन्स reimbursements के मीन्स काफ़ी good ways हैं। So let's see. Historically, fee for service has been prevalent, but there is a shift towards value-based care, where reimbursement is tied to patient outcomes and quality metrics. अच्छा, यूएसए के अंदर हम देखते हैं कि हाँ भी जितने भी आप क्लेम्स मीन इंश्योरेंस को सेंड करते हो, अगर वो क्लीन क्लेम्स हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू प्रोसेस ऑल दोज क्लेम्स एंड पे द रिम्बर्समेंट्स, पे द पेमेंट्स फॉर दोज काइंड ऑफ क्लेम्स एंड सर्विसेज विच द प्रोवाइडर हैज रेंडर्ड। ठीक है, यहाँ पर फी फॉर सर्विसेज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी वैल्यू बेस्ड केयर है, ठीक है, कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड की है, कोई भी आपने प्रोसीजर प्रोवाइड किया है, ठीक है, दे आर जस्ट गोइंग टू पे फॉर दोज काइंड ऑफ सर्विस। बट मेन चीज़ वही आ जाती है कि हाँ भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर होना चाहिए। जो भी पॉलिसीज़ हैं, अगर वो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस है तो उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उसकी जो मीन्स ये है कि गाइडलाइंस हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आपका क्लेम बना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी कोडिंग की गई हो, CPT कोड्स लगे हों, आईसीडी कोड लगे हों, मॉडिफायर लगे हों। सो इस तरह की सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। ओके, सो जब इस तरह का क्लीन क्लेम भेजा जाता है, देन दे आर जस्ट गोइंग टू पे द रिम्बर्समेंट्स फॉर योर क्लेम्स। सो नेक्स्ट वी सी कनाडा के अंदर क्या सीन होता है, ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल पेयर सिस्टम। अब इसके अंदर क्या है, सिंगल पेयर सिस्टम है, वहाँ पर मल्टी पेयर्स हैं। ठीक है,
But instead of USA, the Canada is just going to have a single payer system where the government pays for the most healthcare services. Means यहाँ पर जो government है, they are just going to pay the most of the healthcare services. Means जो भी patient या जो भी citizen जाके कोई भी healthcare service receive करता है, तो उसकी जो responsible entity होती है वो government होती है. Okay, the reimbursement model is structured within this government funded framework. अब इसकी जो सारी भी फंडिंग होगी, मीन्स जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सो वो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं. सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज विच आर बीइंग रेंडर्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स इन डिफरेंट प्रोविंसेस. ठीक है, हर प्रोविंस का जैसे ये क्या है, अलग से एक सिस्टम होता है. तो उसी सिस्टम के अंदर ये है कि उन पेशेंट्स को मीन्स ये है कि वो डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं. यूएसए के अंदर मल्टीपेयर सिस्टम है, वहाँ पर गवर्नमेंट के भी इंश्योरेंसेज हैं, प्राइवेट भी इंश्योरेंसेज होती हैं. बट इंस्टेड ऑफ यूएसए, इन कनाडा के अंदर से सिंगल पेयर सिस्टम है, वहाँ पर गवर्नमेंट ही उस सिस्टम को मीन्स ये है कि पब्लिकली फंडेड कर रही होती है. ठीक है, सो उसके अंदर यही है कि हाँ भी गवर्नमेंट ही उसको टेक केयर करती है, गवर्नमेंट के तहत ही उसको जितने भी पेशेंट्स होती हैं उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो उनको ही टेक केयर करती है, और उनकी पेमेंट्स और रिimbursements भी वही करती है. Okay, so next is regulatory framework. USA के अंदर has stringent healthcare regulations including HIPAA. As we know that we have means जो भी medical billing companies होती हैं या कोई भी means ये है कि healthcare provider है, they are just going to follow the HIPAA guidelines, Health Insurance Portability and Accountability Act, which governs patient data privacy, security and electronic transitions. Means कोई भी आप data patient का आपके पास है, you have to be taken care that kind of a data, because you are not going to show that kind of a data to anyone. ठीक है, अनलेस देर इज़ अ कंसर्न. मीन्स कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, ठीक है, डाटा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स ये कि मेडिकल बिलिंग कंपनी से किसी भी इंश्योरेंस के पास डाटा जा रहा होता है, दैट इज़ क्वाइट सिक्योर्ड एंड प्राइवेट. ओके, इसके अलावा ये है कि जितनी भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, सिक्योर्ड रखा जाता है. जितनी भी हिपा की पॉलिसीज़ होती हैं, दे आर एवरी बिलिंग कंपनी एंड प्रोवाइडर शुड be going to adhere to those kind of guidelines and rules and regulations. Okay, so what we see in Canada has its own set of healthcare regulations and privacy rules, such as PIPEDA, means PIPEDA, Personal Information Protection and Electronic Documents Act. Means same kind of a HIPAA, उनका एक PIPEDA है. ठीक है, वो उसके अंदर मीन्स ये है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वही है, मीन्स सिमिलरिटी वही है कि हाँ भी मीन्स दोनों ही सेम मीन्स एक स्ट्रक्चर है उसका फॉलो कर रहे हैं, बट नेम्स आर लिटिल बिट डिफरेंट. ओके, सो विच आल्सो एड्रेस पेशेंट्स प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन. उसके अंदर भी पेशेंट का जो डाटा होता है, पेशेंट की जो प्राइवेसी होती है, उनकी डिजीज होती हैं, उनके जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, सबको मीन्स ये कि प्रोटेक्ट किया जाता है, सिक्योर रखा जाता है. सो यूएसए के अंदर वही हिपा पॉलिसी मीन्स यूज़ की जाती है, और इसके अंदर पाइपीडा मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एक्ट इसके अंदर यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है, इन कैनेडा. So these were the differences between USA and Canada healthcare system. So now we are just moving ahead towards similarities. Means देखते हैं कि what kind of similarities do they have. ओके, सो डिफरेंसेस काफ़ी सारे थे. ठीक है, उसके अंदर ये है कि डिफरेंट जैसे ये है कि प्रोविंसेस है, वहाँ पर मल्टीपेयर सिस्टम है, यहाँ सिंगल पेयर सिस्टम है, वहाँ पर ये है कि डिफरेंट प्राइवेट इंश्योरेंसेज भी काम कर रही होती हैं, यहाँ पर ये है कि सिर्फ एक सिंगल पेयर सिस्टम है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ही हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है डिफरेंट सर्विसेज के अंदर. ठीक है, so let's see what kind of similarities do they have. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग एंड बिलिंग प्रैक्टिसेस. अब देखते हैं कि कोडिंग और बिलिंग प्रैक्टिसेस के अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं जो यहाँ पर मींस यूटिलाइज हो रही हैं. बोथ कंट्रीज यूज स्टैंडर्डाइज्ड कोडिंग सिस्टम्स, आईसीडी फॉर डायग्नोसिस, procedural codes for treatments to document and bill for healthcare services. Yes, as we have already discussed this in previous slides, that they are just going to use ICD-10 data. ICD-10, 11 means these kind of data are being used for means coding. ठीक है, जब भी किसी डिजीज को कोड करना होता है, दे आर जस्ट गोइंग टू यूज द ICD-10 डाटा. ठीक है, ICD फॉर डायग्नोसिस, प्रोसीजरल कोड्स फॉर ट्रीटमेंट्स. So this is the common thing between these two countries. Next is emphasis on accuracy and compliance. In both countries, accuracy in coding, proper documentation, and adherence to rules, regulations are crucial for successful medical billing and reimbursements. ठीक है, तो ऐसी बात है, when you are just working for different kind of insurances, then you should know that there should be a rule and regulation that you are just going to adhere. सो इसी तरीके से ही यूएसए के जो हेल्थ केयर सिस्टम है या कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम है, दे आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस. उसके अंदर जैसे यूएसए के अंदर हिपा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उसी तरीके से पाइपीडा के
पाइपेड जो है वो कैनेडियन मीन्स ही है कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सो ये दोनों कंप्लाइंट होते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों ही फॉलो करते हैं, ताकि ये है कि मेडिकल बिलिंग का जो प्रोसेस है, आरसीएम का जो प्रोसेस है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आए, कोई भी प्रोसीजर्स जो हैं वो इजीली स्मूथली रन करते रहें, वहाँ पर यह है कि कोई भी इस तरह के इश्यूज क्रिएट ना हो। दीज आर द टू सिमिलैरिटीज बिटवीन यूएसए एंड कैनेडियन medical billing system. Next is role of medical billing companies. So what is the role of medical billing companies between these two countries? Let's see that. Both the USA and Canada have a market for medical billing companies that specialize in navigating the complexities of billing, coding, claim submissions and revenue cycle management for healthcare providers. ठीक है, अब यूएसए के अंदर एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हाँ भाई वही डेमोज बनते हैं, चार्जेस बनते हैं, पेशेंट्स का मीन्स ये है कि विजिट्स होते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ये क्लेम बनाए जाते हैं, क्लेम सबमिट किए जाते हैं, क्लेम की प्रोसेसिंग होती है, एडजुडिकेशन होती है, क्लेम्स की पेमेंट्स होती है, फिर रिइंबर्समेंट्स होती हैं, पेमेंट पोस्टिंग होती है, फिर फाइनल पेशेंट स्टेटमेंट्स भेजी जाती हैं। इस तरह का मीन्स एक पूरा प्रोसीजर एक जो है वो रन कर रहा होता है, ठीक है। सो उसी तरीके से है कि यहाँ पर मेडिकल बिलिंग डिफरेंट कंपनीज हैं, वो भी इसी तरीके से ही यूज़ कर रही होती हैं सारे सिस्टम को, ठीक है। उसके अंदर बिलिंग हो रही होती है, कोडिंग हो रही है, क्लेम बन रही होती है, क्लेम की सबमिशन हो रही होती है। सो दोनों कंट्रीज़ के अंदर सेम स्ट्रक्चर है मींस बिलिंग का, ठीक है। उसके अंदर ये है कि सेम वही डेमोज बनाए जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली ही क्लेम्स जो हैं वो सबमिट किए जाते हैं। सो ऑल दिस काइंड ऑफ यू कैन से दैट एक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर जो क्लेम बनाए जाते हैं, क्लेम जो इंश्योरेंसेस को भेजे जाते हैं, सो दोज आर क्वाइट सिमिलर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। बोथ कंट्रीज यूटिलाइज टेक्नोलॉजी and software to streamline billing processes, manage patient records, and submit claims electronically for faster processing. So this is going to be the same thing कि हाँ भी यूएसए के अंदर भी और कनाडा के अंदर भी मीन्स जाहिर सी बात है हर बिलिंग जो कंपनी है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही होती है, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू यूज़ डिफरेंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैरियर यूज़ किया जाता है, एडवांस्ड एमडी हो गया, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे यूएसए के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब जो कैरियर था दैट इज़ जस्ट गोइंग टू इनटू टेब्रा मींस दैट इज़ ट्रांजिशनड इनटू टेब्रा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मींस ये है कि हमने वी हैव जस्ट ऑलरेडी रेड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स in our previous lectures. There is a lecture that we have just covered all the most of the softwares that are quite good and advanced for medical billing. You can just watch that kind of a lectures as well. Okay, so बात वही है कि हाँ भी जितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करेंगे उतनी ही जो बिलिंग होगी वो आपके लोगों की ईजी होगी। Okay, so when you're just going to use different kind of advanced softwares, then the billing is quite easy for you. So you are just going to add different kind of patient's data, मेकिंग चार्जेस, सेंडिंग द क्लेम्स इलेक्ट्रॉनिकली टू इंश्योरेंसेस, ठीक है। आपको मेल्स नहीं करनी पड़ती पेपर में। कुछ इंश्योरेंसेस होती हैं जो कि सिर्फ मेल्स बाय मेल ही मीन्स ही है कि क्लेम्स रिसीव करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस हैव इलेक्ट्रॉनिक पेयर आईडीज, ठीक है। उनके इलेक्ट्रॉनिक पेयर आईडीज होती हैं, आप वो इलेक्ट्रॉनिकली ही क्लेम्स जो हैं वो एक्सेप्ट करती हैं। So that is quite a good and advanced kind of a thing. So they are just going to have different kind of a claims electronically, and they are just doing those kind of a claims and adjudicating those kind of a claims electronically as well. और फिर उसके बाद जो explanations जो भेजी जाती हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही आप लोगों को भेजी जाती हैं, उसके बाद पेमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली ही हो जाती हैं। So everything is just going to be electronically done. So both countries, USA and Canada, both are going to use different kind of advanced softwares. Medical billing companies are also using advanced softwares to secure the data of the patient, and also the different kind of confidential and data for those kind of a patients as well. So this was all it. So this was all about the patient's similarities. One slide we are just leaving. So this is while some similarities exist in terms of coding practices and the role of billing companies, the differences primarily stem for the diverse healthcare systems, reimbursement models, and regulatory frameworks in the US and Canada. Understanding these distinctions is essential for efficient and accurate medical billing in each respective country. ठीक है, मीन्स जो भी employees हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, so they have to understand the rules and regulations and the different kind of procedures they are just going to use to do medical billing in a great and prospect way.
So this was all it. If you guys have any kind of a questions, any kind of a concerns, then you guys just comment on this video. I'll just get back to you as soon as possible. So inshallah we'll meet in the next lecture with the next different kind of a stuff for you guys. Okay, so till then, take care of yourself and of your family. But one more thing, I just want to remind you all that these kind of a basic lectures are very helpful for you guys, so just watch them. Okay, and if you feel different kind of a difficulty, okay, while watching these lectures, if you don't understand any kind of a thing while watching these lectures, because I have just focused on all the kind of a stuff that is quite easily available on YouTube, because I just thought in the initial stages that there is no so much data available for medical billing on this field, okay, on this platform. So I just tried my best. I am just going to provide different kind of other lectures as well, which will be quite helpful for you guys to understand what is the basics of medical billing. ओके, अगर इसके अलावा कोई आप लोगों को कोई इशू हो, कोई आप लोगों को लेक्चर लगता हो कि हम ये लेक्चर कवर होना चाहिए, ठीक है, तो वो बता सकते हैं आप लोग, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई कंसर्न्स हों, कोई डिफ़िकल्टीज़ हों, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो आप लोगों को, सो यू गाइस जस्ट कैन कमेंट मी, यू गाइस कैन ईमेल मी एज वेल। मेरा यूट्यूब के चैनल के ऊपर मेडिकल बिलिंग के, और वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी भी प्रोवाइडेड है, मेरा फ़ोन नंबर भी प्रोवाइडेड है। अगर आप लोगों को कोई भी इस तरीके का इशू होता है, यू गाइस कैन जस्ट लेट मी नो। Okay, so anyhow, inshallah, we'll meet in the next lecture with different kind of a stuff on medical billing. Till then, take care of yourself and of your family. Allah Hafiz.